Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to Sandal College Boys Section Online Class 7. Dear students, Assalamu alaikum. Here is Akhtar Saeed, your English teacher. Today is lecture number 26 and we'll discuss future continuous tense. Dear students, tenses are considered to be the pillars of English grammar. Without tenses, you cannot convey your meaning to others in English or any other language. In order to learn English language, it is necessary to understand tenses and use them correctly in writing and speaking. Now the definition of future continuous tense. Future continuous tense is used to express an ongoing action. यह किसी जारी एक्शन को एक्सप्रेस करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है और वो जारी एक्शन कब होता है? इन फ्यूचर। ऐसा कोई एक्शन जो आने वाले ज़माने में जारी हालत में हो, उसको एक्सप्रेस करने के लिए, बयान करने के लिए फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस यूज़ करते हैं। इट्स ऑल्सो कॉल्ड फ्यूचर प्रोग्रेसिव टेंस। उर्दू में पहचान क्या होती है? उर्दू फ़िक्रा के आखिर में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आता है। लेट्स सी सम एग्जांपल्स इन उर्दू सेंटेंसेस। वो सबक याद कर रहा होगा। ये एंड पे उर्दू फ़िक्रा के आखिर में रहा होगा हो तो वो कौन सा टेंस होगा? फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। मेरे साथ आप भी बोलिए, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। बहुत से स्टूडेंट्स ये कंटिन्यूअस को और ही तरह से बोलते हैं। इसको प्रोनाउंस करना है तो सही प्रोनाउंसिएशन कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। लेट्स सी अनदर एग्जांपल। आलिया खाना खा रही होगी। फिक्रा के आखिर में क्या है? रही होगी। लेट्स सी अनदर एग्जांपल। वो फुटबॉल खेल रहे होंगे। एंड पे क्या है? रहे होंगे। तो कौन सा टेंस हुआ? फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। तो उर्दू फ़िक्रा के आखिर में अगर रहा होगा, रही होगी या रहे होंगे आए तो वो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस होता है। अब इसकी कंस्ट्रक्शन या इसका फॉर्मूला डिस्कस करते हैं। इफ़ अ सेंटेंस स्टार्ट्स विद आई एंड वी, यू विल राइट शैल बी। कंटिन्यूअस टेंस में यू विल राइट शैल बी आफ्टर आई एंड वी। If sentence starts with you, he, she, it and they, you will write will be. So with I and we, you will write shall be. I and we are first person pronouns. You is second person pronoun. He, she, it and they are third person pronouns. If a sentence starts with singular or plural pronoun, even then you will write will be. The example of singular noun is Ali and the example of plural noun may be the boys, as it is a plural noun. Ali and Saima may also be plural nouns. After writing shall be or will be, obviously you will write either of the two, shall be or will be. Then you will write first form of verb and you will add ing to the first form of verb. When you add ing to the first form of the verb, it becomes present participle. It is also called fourth form of verb. After writing verb, you will write object and complete the sentence. If you want to change the sentence into negative, you will write the nouns or pronouns as we wrote here. Then you will write shall or will. You will not write be in the negative sentences. Just after will or shall, you will write not. Shall not, will not. Then you will write be. Certain students make a mistake. They write shall be not or will be not. That is incorrect. You will just write not after shall or will. Then you will write be. I repeat, shall not be, will not be. And then you will write as we wrote in the positive or assertive sentence, first form of verb plus ing. It is called present participle, then object. And if you want to write
interrogative sentence, you will just write shall or will in the beginning of the sentence and no other change will be made, but at the end of the sentence here you will write question mark. Now let's see an example. मैं खत लिख रहा हूँगा. What is the first step? As I did in the previous lecture, that was future indefinite tense. It is future continuous tense, but will follow the same procedure, same steps. First step is identification of tense. वो हमें पता चलेगी कि आखिरी वर्ड्स क्या हैं. रहा हूँगा से पता चला कि ये फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस है. सेकंड स्टेप, किससे स्टार्ट हो रहा है? मैं से स्टार्ट हो रहा है. मैं की इंग्लिश आई. यू नो आई और वी के साथ हम हमेशा शैल भी लिखते हैं फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस में. वैसे फ्यूचर के जितने भी टेंसेस हैं, जैसे फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में आई और वी के साथ शैल लिखेंगे, बाकी सब के साथ विल लिखेंगे. इट इज़ फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस, यू विल ऐड बी विद शैल आर विल. मैं खत लिख रहा हूँगा, आई शैल बी. देन आई एन जी विद द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, आई शैल बी राइटिंग अ लेटर. I shall be, then ing with the first form of verb, writing a letter. If we want to change it into negative sentence, I shall not be writing a letter. You will write not just after helping verb shall or will. Certain students write, I repeat. वो क्या करते हैं? I shall be not or will be not. वो गलत होगा. I shall not be writing a letter. Now interrogative sentence, what will you do? You will just change the positions of nouns and pronouns. And helping verb. Helping verb shall or will in the beginning of the sentence, and noun or pronoun will come in place of the helping verb will or shall. Shall I be writing a letter? And at the end, do not forget to put question mark. If you do not put question mark here, it will be considered a wrong sentence. Let's see some other examples. Number 1. वो स्कूल जा रहे होंगे. What is the first step? Identification of tense. रहे होंगे से पता चला कि ये फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस है. नेक्स्ट स्टेप इज़ किससे स्टार्ट हो रहा है? वो की इंग्लिश ही भी है, दे भी है. अब यहाँ से पता चलेगा रहे होंगे, ही का प्लूरल है दे, तो दे के साथ विल भी यूज़ करते हैं. दे विल बी जाना गोइंग टू स्कूल. दे विल बी गोइंग टू स्कूल. नंबर 2, हम खाना खा रहे होंगे. What is the first step? Identification of tense. तो क्या आइडेंटिफाई हुआ? यहाँ से आइडेंटिफाई हुआ कि रहे होंगे से पता चला कि ये फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस है. नेक्स्ट स्टेप इज़ व्हाट इज़ द फर्स्ट वर्ड? दैट इज़ हम की इंग्लिश वी के साथ हम शैल भी यूज़ करते हैं और आई के साथ शैल भी यूज़ करते हैं. आई और वी के साथ शैल भी, बाकी सब के साथ विल भी. तो वी शैल बी खाना खाना. Eating meal. We shall be eating meal. Number 3. लड़के फुटबॉल खेल रहे होंगे. Again, what is the first step? Identification of tense. कौन से टेंस की आइडेंटिफिकेशन हुई? रहे होंगे से फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस. नेक्स्ट स्टेप, किससे स्टार्ट हो रहा है? ये सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है लड़के से. लड़के की इंग्लिश द बॉयज़. ये नाउन है, तो नाउन के साथ हमेशा हम विल बी लगाते हैं. द बॉयज़ विल बी प्लेइंग फुटबॉल. द बॉयज़ विल बी प्लेइंग फुटबॉल. नंबर 4, वो खाना पका रही होगी. व्हाट इज़ द फर्स्ट स्टेप? आइडेंटिफिकेशन ऑफ टेंस. रही होगी से आइडेंटिफिकेशन हुई कि ये फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस है. नेक्स्ट स्टेप, वो किससे स्टार्ट हो रहा है? वो की इंग्लिश, अब वो की इंग्लिश ही भी है, दे भी है, शी भी है. तो वो कैसे पता चलेगा कि वो की इंग्लिश यहाँ क्या है? रही होगी से पता चला कि ये फेमिनन है. तो यहाँ फिर वो की इंग्लिश शी के साथ विल बी. मैं दोबारा बता रहा हूँ, आई और वी के साथ आपने शैल बी यूज़ करना है और बाकी सब के साथ विल बी.
शी विल बी कुकिंग मील, शी विल बी कुकिंग मील। नंबर 5, लड़की खिड़की खोल रही होगी। व्हाट इज़ द फर्स्ट स्टेप? आइडेंटिफिकेशन ऑफ टेंस। वो हमें कहाँ से पता चलती है? लास्ट वर्ड्स से। रही होगी से पता चला कि ये फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है। सेकंड स्टेप कि किससे स्टार्ट हो रहा है उर्दू का सेंटेंस? लड़की। लड़की की इंग्लिश द गर्ल। द गर्ल नाउन है, नाउन के साथ हम विल बी यूज़ करते हैं। द गर्ल विल बी ओपनिंग द विंडो, द गर्ल विल बी ओपनिंग द विंडो। नंबर 6, परिंदे चहचहा रहे होंगे। आइडेंटिफिकेशन ऑफ टेंस, रहे होंगे से पता चला कि ये फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का फिक्रा है। नेक्स्ट स्टेप इज़ कि उर्दू का सेंटेंस किससे स्टार्ट हो रहा है? परिंदे। परिंदे की इंग्लिश बर्ड्स। द बर्ड्स के नाउन की वजह से इसके साथ विल बी आएगा। द बर्ड्स विल बी चर्पिंग, द बर्ड्स विल बी चर्पिंग। नंबर 7, बच्चे होमवर्क कर रहे होंगे। व्हाट इज़ द फर्स्ट स्टेप? आइडेंटिफिकेशन ऑफ टेंस। वो किससे पता चलती है? लास्ट वर्ड से। रहे होंगे से पता चला कि ये फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है। नेक्स्ट स्टेप कि ये सेंटेंस किससे स्टार्ट हो रहा है? बच्चे। बच्चे की इंग्लिश चिल्ड्रन। बच्चे नाउन है, तो चिल्ड्रन नाउन होने की वजह से इसके साथ हम विल बी यूज़ करेंगे। द चिल्ड्रन विल बी डूइंग देयर होमवर्क, the children will be doing their homework. Next is number 8, क्या वो सच बोल रहा होगा? फर्स्ट स्टेप आइडेंटिफिकेशन ऑफ टेंस, रहा होगा से पता चला ये फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है। और किससे स्टार्ट हो रहा है? क्या से। क्या तो ये तो इंट्रोगेटिव हो गया। मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर जो कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के बारे में था वहाँ भी बताया था अगर क्या हो तो समझें वो नहीं है, तो स्टेप्स सेम ही फॉलो होंगे जो मेन स्टेप्स होते हैं। तो उसके बाद वो से स्टार्ट हो रहा है फिक्रा, वो सच बोल रहा होगा। वो ही के साथ हम विल भी यूज़ करते हैं। आपको याद है ना कि ही और आई और वी के साथ शैल बी, बाकी सब के साथ विल बी। तो ही विल बी स्पीकिंग द ट्रूथ। अब इंट्रोगेटिव है तो विल को स्टार्ट में लिखेंगे। विल ही बी स्पीकिंग द ट्रूथ। याद रखें ये इडियम है, सच बोलना, स्पीक द ट्रूथ। तो आप टेल द ट्रूथ नहीं लिख सकते, तो स्पीक द ट्रूथ। यहाँ स्पीकिंग इसलिए यूज़ हुआ है क्योंकि ये फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है। विल ही बी स्पीकिंग द ट्रूथ। नंबर 9, क्या वो झूठ नहीं बोल रहे होंगे? फर्स्ट स्टेप आइडेंटिफिकेशन ऑफ टेंस, रहे होंगे से पता चला ये फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है। फिर फर्स्ट वर्ड क्या है? क्या। तो ये इंट्रोगेटिव है, तो क्या को समझें यहाँ नहीं है, बल्कि ये इंट्रोगेटिव और नेगेटिव इकट्ठा ही है। समझें नहीं भी यहाँ नहीं है, नहीं इज़ नॉट हियर। तो वो झूठ बोल रहे होंगे, वो की इंग्लिश यहाँ दे, चूँकि ये प्लूरल है यहाँ से पता चला रहे होंगे। ये रहा होगा तो वो ही था, ये रहे होंगे तो वो की इंग्लिश दे होगी। दे विल बी टेलिंग अ लाई। अब नेगेटिव है तो नॉट ऐड कर देंगे, विल नॉट बी। इंट्रोगेटिव है तो विल को सेंटेंस के स्टार्ट में लिख देंगे। विल दे नॉट बी टेलिंग अ लाई। मैं आपको ये भी बताता चलूँ, सच बोलना ये भी बोलना ही है, झूठ बोलना, सच बोलना, लेकिन सच के साथ आप स्पीक यूज़ करेंगे और लाई झूठ के साथ आप टेल यूज़ करेंगे। आप यहाँ स्पीक अ लाई नहीं कह सकते और इधर टेल द ट्रूथ नहीं कह सकते। नंबर 10, आयशा अपनी गुड़िया के साथ खेल रही होगी। फर्स्ट स्टेप आइडेंटिफिकेशन ऑफ टेंस। देखें बेटा, मैं हर सेंटेंस में स्टेप्स फॉलो करता हूँ। मुझे उम्मीद है आप भी हर सेंटेंस में ऐसे ही स्टेप्स फॉलो करेंगे तो फिर गलती नहीं होगी। बास बच्चे जल्दबाजी में डायरेक्ट फिक्रा लिखने की कोशिश करते हैं इंग्लिश में, तो गलती फिर होने का अंदेशा होता है। तो इसी तरह स्टेप्स को फॉलो करें। रही होगी से पता चला कि ये फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का फिक्रा है। किससे स्टार्ट हो रहा है? नेक्स्ट स्टेप आयशा। आयशा इज़ अ नाउन। नाउन चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो उसके साथ हम विल बी यूज़ करते हैं। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में आयशा विल बी प्लेइंग विद हर डॉल। आयशा विल बी
playing with her doll. Number 11, तालबे इलम शोर नहीं मचा रहे होंगे, नेगेटिव है तो रहे होंगे आइडेंटिफिकेशन ऑफ टेंस से पता चला कि ये फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का फिक्रा है. नेक्स्ट स्टेप इज़ व्हाट इज़ द फर्स्ट वर्ड, तालबे इलम, स्टूडेंट्स. द स्टूडेंट्स के साथ नाउन के साथ हम विल भी यूज़ करते हैं तो ये नेगेटिव है. द स्टूडेंट्स विल नॉट बी, विल बी नॉट नहीं करना, द स्टूडेंट्स विल नॉट बी, या शैल नॉट बी अगर शैल यूज़ करना हो तो द स्टूडेंट्स विल नॉट बी मेकिंग अ नॉइस. नंबर 12, क्या असद टीवी देख रहा होगा. व्हाट इज़ द फर्स्ट स्टेप, आइडेंटिफिकेशन ऑफ टेंस, रहा होगा से पता चला कि ये फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का फिक्रा है. फिर व्हाट इज़ द नेक्स्ट स्टेप, व्हाट इज़ द फर्स्ट वर्ड, क्या, ये इंट्रोगेटिव है तो क्या को समझें यहाँ नहीं है. असद टीवी देख रहा होगा, असद नाउन है तो नाउन के साथ हम विल भी यूज़ करते हैं. इंट्रोगेटिव की सूरत में विल हम स्टार्ट में लिखेंगे. विल असद बी वॉचिंग टीवी, विल असद बी वॉचिंग टीवी. नेक्स्ट इज सेंटेंस नंबर 13, तालबे इलम अपना सबक याद कर रहे होंगे. अगेन व्हाट इज़ द फर्स्ट स्टेप, दैट इज़ द आइडेंटिफिकेशन ऑफ टेंस, वो यहाँ से पता चलती है जो लास्ट वर्ड्स होते हैं. रहे होंगे से पता चला फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस. मैं जब भी ये प्रोनाउंस करता हूँ तो मेरे साथ ज़रूर बोला करें आप भी, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, ताकि आपको ये वाला वर्ड कंटिन्यूअस सही प्रोनाउंस करना भी आ जाए. तो सेकंड स्टेप इज़ द फर्स्ट वर्ड तालबे इलम, स्टूडेंट्स. तो स्टूडेंट्स नाउन है, उसके साथ हम विल भी यूज़ करते हैं. द स्टूडेंट्स विल बी लर्निंग देयर लेसन, द स्टूडेंट्स विल बी लर्निंग देयर लेसन. नंबर 14, उस्ताद साहिब हाज़री लगा रहे होंगे. व्हाट इज़ द फर्स्ट स्टेप, रहे होंगे, आइडेंटिफिकेशन ऑफ टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस. व्हाट इज़ द फर्स्ट वर्ड, उस्ताद साहिब, द टीचर. नाउन है, नाउन के साथ हम विल भी यूज़ करते हैं. द टीचर विल बी टेकिंग द रोल, द टीचर विल बी टेकिंग द रोल. नंबर 15, बच्चे पतंग नहीं उड़ा रहे होंगे. व्हाट इज़ द फर्स्ट स्टेप, आइडेंटिफिकेशन ऑफ टेंस, रहे होंगे से पता चला ये फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है. और व्हाट इज़ द फर्स्ट वर्ड, बच्चे, बच्चे की इंग्लिश चिल्ड्रन, ये नाउन है, इसके साथ हम विल भी यूज़ करेंगे. और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी. द चिल्ड्रन विल नॉट बी फ्लाइंग काइट्स, द चिल्ड्रन विल नॉट बी फ्लाइंग काइट्स. नंबर 16, बच्चे अपने अपने कमराए जमात में जा रहे होंगे. रहे होंगे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, बच्चे, स्टूडेंट्स, चिल्ड्रन, कमरा जमात की वजह से स्टूडेंट्स, चिल्ड्रन भी लिख सकते हैं. द स्टूडेंट्स विल बी गोइंग टू देयर रिस्पेक्टिव क्लासरूम्स. अब यहाँ अपने अपने 2 मरतबा आ जाए किसी सेंटेंस में तो फिर हम वहाँ रिस्पेक्टिव यूज़ करते हैं कि हर बच्चे का एक मखसूस कमरा है, वो अपनी ही कमरे में जाएगा. इसका मतलब है मुख्तलिफ बच्चे हैं और मुख्तलिफ क्लासरूम्स भी हैं. तो द स्टूडेंट्स विल बी गोइंग टू देयर रिस्पेक्टिव क्लासरूम्स. अगर यहाँ ये सेंटेंस होता तालबे इलम अपना अपना सबक याद कर रहे होंगे तो यहाँ भी फिर हमने यही लिखना था, द स्टूडेंट्स विल बी लर्निंग देयर रेस्पेक्टिव लेसन्स. जैसे यहाँ हमने लिखा है देयर रेस्पेक्टिव क्लासरूम्स. अब यहाँ अपने अपने 2 मरतबा आया है, इस वजह से यहाँ भी अगर अपना अपना 2 दफ़ा आ जाता तो फिर भी हमने यहाँ फिर रेस्पेक्टिव लिखना था. नंबर 17, हम मैच से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे होंगे. लास्ट सेंटेंस है ये. तो फर्स्ट स्टेप इज़ आइडेंटिफिकेशन ऑफ टेंस, रहे होंगे से पता चला कि ये फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है. सेकंड स्टेप इज़ व्हाट इज़ द फर्स्ट वर्ड, दैट इज़ हम. हम की इंग्लिश वी. वी के साथ हम क्या यूज़ करते हैं, शैल बी. तो वी शैल बी enjoying the match. We shall be enjoying the match. That's all of today's lecture. Dear students, I would advise you to watch and listen this lecture again. See the construction and formula of the tense, then the examples.
so that you may be able to understand future continuous tense in a very good way. And I would also ask you to write all the sentences and formula as homework in your notebooks. If you find any problem, if you face any difficulty, you may comment in the comment section. Till the next lecture, take care. Thank you very much.